हार्ट की बीमारी आज नंबर 1 बीमारी है वर्ल्ड की। इंडिया में 30% डेथ हार्ट से होती है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। एवरी डे 9,000 people die of heart attacks. 9,000, which makes it every 10 seconds one death. So every 10 seconds one death is happening due to heart problem. And this problem is solvable if we use yoga naturopathy in a proper way. What I tried to do was, I tried to add both of them together. Allopathic medical science is definitely done lot of research work, lot of knowledge base they have got. And being a doctor of allopathy, I found out that without the yoga, naturopathy, allopathy cannot be completed. And we started this. People ask me, sir, what is SAOL? It is science and art of living. From the medical science, I have taken all the medical details, all the knowledge about heart disease, all the medical tests, all the medical drugs, I have used them. But from the art of living, I have taken yoga, meditation, stress management, diet, cooking. So I have combined both of them together, the science and the art of living. People ask me, sir, थोड़ा और simple बताइए, तो मैं बोलता हूँ सोच लीजिए बाबा रामदेव या श्री श्री के संग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को जोड़ दिया हमने. लोग मुझे पूछते हैं, सर, why are you so different? You are from the mainstream, medical doctor community, and you have come out of them, and you don't like them, and you are talking about against them. What made you change your life? And this I want to share in a small story setup. I belong to Rajasthan. I grew up in Calcutta. I did my schooling and MBBS from Calcutta. When I became a medical doctor, I was very confident that whatever I had learned is the best. Medical science has everything proven, all scientifically proven. We have seen the dead body from every part to part. We have experimented with the medicine. We have seen the medicines working on the animals, so it will work. And then we tried with the patients, everything is working. So I became a hardcore medical doctor. And with that idea, I came to Delhi. मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. And I was working as a junior resident in cardiology, and one incident changed my life. एक पेशेंट मेरे पास आए, हार्ट की बीमारी थी उनको, बोले सर इफ आई वॉक आई गेट अ चेस्ट पेन, और ये पेन चलते ही बढ़ जाती है और रुकते ही मैं ठीक हो जाता हूँ. मैंने पूछा ये पेन इस हाथ में जाती है? यस, इट गोज टू द लेफ्ट हैंड. आई न्यू इट वाज अ हार्ट प्रॉब्लम. मैंने उनको सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई एंड अल्टीमेटली आई टोल्ड हिम, लुक यू आर अ हार्ट पेशेंट बट देयर इज नथिंग टू वरी. मैंने उनको दवाइयाँ लिख के दे दी, एलोपैथी की दवाई थी, और ये कब की बात है? 1986. हाउ मेनी इयर्स नाउ? अबाउट 33 इयर्स. उस वक्त मैं 25 साल का था, 58 का हूँ. तो वो 25 साल का डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ लिख के दे दी. 6 टैबलेट मैंने लिखा था. एक सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है हार्ट की बीमारी में, वो पेन खत्म कर देता है, एंड एक बीटा ब्लॉकर, एक डिस्प्रिन, मैंने वो लिख के दिया. पेशेंट ने मेरे को पूछा, सर कब तक खाना होगा? अच्छा, कब तक बताना चाहिए? हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था मलेरिया में 3 दिन, एंटीबायोटिक दोगे तो 5 से 7 दिन, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करोगे तो 6 महीने से 1 साल, पर हार्ट की बीमारी में जिंदगी भर. मैंने और ये भी बोला था जिंदगी भर एक साथ अनाउंस मत करना, थोड़ा थोड़ा करके. So I told him, look, you take it for a month and after a month you come back. So after a month he came back, sir you are a wonderful doctor. जिस दिन पहली दवाई खाई है उसके बाद एक बार भी पेन नहीं हुआ. I was very happy. पर हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था पेशेंट अगर ठीक है तो दवाई बंद मत करना, सेम मेडिसिन टू. तो मैंने वही दवाई लिख दिया. मैं बोला यही चलेगा, फिर 1 महीने बाद मिलो. ही केम बैक, सर वो दैट पेन इज कमिंग अगेन. आई सेड डोंट वरी, दवाई ले रहे हैं? बोला हाँ ले रहा है. मैंने और दवाई बढ़ा के दे दिया. ही केम बैक नेक्स्ट टाइम, सर अब एकदम ठीक हूँ बिकॉज ऑफ यू. आई सेड ओके, कंटिन्यू सेम मेडिसिन. थोड़े दिन बाद आके बोलता है फिर दर्द हो रहा है. मैंने और दवाई बढ़ा दी. अल्टीमेटली आई रीच्ड अबाउट 15 टैबलेट्स. और उसके बाद जो सबसे वर्स्ट हो सकता है उसके संग वही उसके साथ हुआ. ही सफर्ड अ मेजर हार्ट अटैक. He was admitted in the same hospital where I was working. We shifted him to the ICU. और ICU में हम लोग 10 डॉक्टर, सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट, सारे मिलके उसको
ट्रीटमेंट देते गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया और ईसीजी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हुई, हंड्रेड्स ऑफ इंजेक्शंस दी गई, अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट। उस पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ होने से हमें कुछ नहीं करना होता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, रिश्तेदार को बुलाना है, उनको बोलना है सॉरी वी ट्राइड आवर बेस्ट। वो भी बोले कि हम लोग देखने आए थे, 10-10 डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, स्टिल वी कुड नॉट सेव द पेशेंट, हमारा लक खराब है। दे टुक द बॉडी, दे टुक द डेथ सर्टिफिकेट एंड लेफ्ट। द फाइल वाज closed, but that day a new file opened into my in my mind. Why did the patient die? अगर हमारी ट्रीटमेंट ठीक थी तो पेशेंट का डेथ होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास हार्ट अटैक लेके एंड वी कुड नॉट सेव दैट पेशेंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप लेट आए थे। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो हम आपको, अच्छा इस पेशेंट के लिए भी ये बोल सकता था ना, आप बहुत लेट आए, अगर पहले आ जाते तो बचा देते। वो तो पहले आ चुका था मेरे पास। एंड दैट डे सडनली आई स्टार्टेड थिंकिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एक गलती हो रही है जो हमें पकड़ नहीं आ रही है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, और उस दिन मैंने रियलाइज किया उस आदमी का खाना पीना पूरा गलत था। ही वॉज ईटिंग ऑल द मीट एंड ऑल द फैट, ही वॉज एक्सरसाइजिंग नथिंग, ही वॉज स्मोकिंग, ही वॉज ओवरवेट, ही वॉज अंडर स्ट्रेस, और ये सब की वजह से उसकी ब्लॉकेज बढ़ती गई और मैं भी दवाइयां बढ़ाते गया। उसको ये नहीं बताया कि बीमारी बढ़ रही है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट आर डूइंग द सेम थिंग। और उस दिन मेरे दिमाग में आया, इसका मतलब पूरा मेडिकल साइंस गलत रास्ते चल रहा है कार्डियोलॉजी के एस्पेक्ट में। मैं सोचने लगा क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अगर हार्ट के पेशेंट को कम से कम खाना पीना रहन सहन बदल देते तो उस पेशेंट की डेथ नहीं होती। एंड देन आई वाज एट अ लॉस, मैं क्या कर सकता था। मैंने सोचा कैसे, किनको कंप्लेन करूं इनके अगेंस्ट में। अच्छा किनको कंप्लेन करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। आई थॉट कोई इसको, इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, हाउ कैन वी स्टॉप देम। तो फिर मैं सोचा अगर रास्ते में जाके माइक लेके खड़ा हो जाऊं और सबको बता दूं तो कैसा रहेगा, इट विल नॉट वर्क। मैंने सारी एग्जॉस्ट करने के बाद मैं बोला मैं अपने सीनियर से मिलूंगा। मैं अपने बॉस को मिला, मैं बोला सर आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ यू। बिमल, आई नो देयर इज अ पेशेंट हु डाइड एंड आई वाज टोल्ड यू आर वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। अरे होता रहता है ऐसा। I said, sir, I am not upset because of the patient, I am upset because of the cardiologists. मैंने उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज। अगर ट्रीटमेंट का मतलब मैंने छोटे से सीखा था बीमारी ठीक हो जाए, कम से कम रुक जाए, और यहाँ पे बीमारी बढ़ते जा रही है, इसको हम ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ये आपको लग रहा है ठीक है कि नहीं है? आपको क्या लगता है ठीक है कि नहीं है? बीमारी बढ़ता जाए और हम इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। माई बॉस कुड नॉट आंसर मी, बट वो मेरे साथ हो भी नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डूइंग द। उन्होंने मेरे को पूछा तुम्हें लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल। मैं बोला सर एग्जैक्टली यही तो बोलने आया हूं आपको। मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, विमल यू कांट चेंज द सिस्टम। पेशेंट क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसका सोचना है, अपना दवाई लिखने का काम है। यू हैव डन योर जॉब एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। मैं बोला सर उनको मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम है, आई कुड हैव एजुकेटेड हिम। बोला नहीं हमारा काम नहीं है। मैं बोला सर पेशेंट गलत खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी। बोला बढ़ने तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला सर मेरे पास वापस आएगा ना, तो अब मैं क्या करूं। बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर आएगा तो क्या करूं। बोला दवाई बढ़ा देना। मैं बोला फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करूं। बोला एडमिट कर लेना। मैं बोला डेथ हो जाए तो क्या करूं। बोला डेथ सर्टिफिकेट देना, सरकार की तरफ से अलाउड है। दैट डे माई माइंड चेंज्ड, ही कुड नॉट कन्विंस मी। उसने मेरे को बोला था देखो इस सिस्टम को आप बदल नहीं सकते, तो वही करना होगा जो सारे लोग कर रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं करने वाला हूं। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड अ न्यू थिंग। मैं हार्ट के पेशेंट को दवाइयां लिख देता था और उसके साथ साथ उनको बोल देता था देखो ये दवाइयां लिख रहा हूं, इससे कभी ठीक नहीं होगे आप। अगर ठीक होना चाहते हो तो कल से वॉकिंग चालू करो, योगा चालू करो, खाने में ये चेंजेस लाओ। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। आई सेड अरे यार तो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया योग, मेडिटेशन ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दवाई थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट दोनों है, पर लाइफस्टाइल चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई डिड 2 years ऑफ माई एमडी, और एमडी में मैंने रिसर्च यही किया कि हार्ट के पेशेंट्स को दवाइयों के साथ साथ और क्या क्या करवा सकते हैं कि दवाइयों की मात्रा कम हो जाए, उन्हें हार्ट अटैक ना हो। एंड इट वर्क्स वेरी सक्सेसफुली फॉर द नेक्स्ट 2 years। आई एसोसिएटेड द मेडिकल कॉलेज विद अ योगा सेंटर।
वो बोले सर अभी तक तो हमारे पेशेंट उधर ले जाते थे, आप वहां के पेशेंट यहाँ लाना चाहते हो? सर यार यही करना चाहता हूँ. And they agreed. They were very happily agreed. Then we shifted the patients. We talked to the patient कि देखो दवाइयाँ तुम्हारी चलेगी, उसके साथ अगर चाहते हो कि दवाइयाँ कम हो जाए तो हम आपको कुछ और ट्रेनिंग दे सकते हैं. And they were all happy. We brought them to the yoga center. We taught them yoga, meditation, stress management, diet, and we found wonderful results. उनकी दवाइयाँ बढ़ नहीं रही है, दवाइयाँ कम होते जा रही है, उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है. मैं कंप्लीट होते ही दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड नेक्स्ट 6 years आई वर्कड ओवर देयर एज अ सीनियर रेसिडेंट एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर. और 6 साल में मैंने एक रिसर्च प्रोसेस लिया. ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से फंडिंग मिली हम लोग को एंड वी ट्रीटेड अबाउट 300 पेशेंट्स हु वर वेटिंग फॉर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बट डिड नॉट वांट टू डू दिस. एंड वी took them, we trained them up, and we found they did not need anything. And the more I went into the process, the more I realized we have to only simplify the medical science. Medical science ने हर चीज को इतनी कॉम्प्लिकेट करके रखा, आम आदमी नहीं समझ पा रहे. मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता गया. And gradually I found it was wonderful. People have to understand what is heart disease. They have to use common sense, and it worked. So nevertheless, 95 I resigned from AIIMS because I did not want to continue with this process, and I resigned because they were also not so happy. But I organized one international conference in AIIMS called First International Conference on Lifestyle and Health in 1995, which was a big success. Huge number of people had come at AIIMS, but I was by that time decided to leave, and I started Saul. And this is the beginning, about 24 years now. Today, Saul has all around the India and in the world. We have about 81 centers across India. I started with one center in 1995, a rented place, and today we have a center, big center in Delhi, 8 centers in Delhi, and we have all across the country centers, starting from Guwahati to Bombay and Rajkot, and from Ludhiana. I don't know, it's working? Okay, it does not work. The laser pointer does not work on the screen. Nevertheless, पूरे इंडिया के हर it's all right, it works. So anyway, this is how is my journey in the whole area, and I found that the ultimate treatment is our body. You know, I must tell you, lot of things have happened in the meantime. The cardiologists, they claim they are doing wonderfully well. The people also accept, oh, they are doing well. But I believe the medical science is going in the wrong direction. You know, somebody came and see how wrongly people start thinking. One person came and told me, Dr. Saab, there's a tremendous success in cardiology. मैंने बोला भाई success कहाँ देखा? बोला सर दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 हो गए. मैंने बोला और कुछ सक्सेस देखा? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे. मैं बोला हर मरीज 2-4 लाख देगा तो बिल्डिंग तो बन ही जाएगा. मैं बोला और कुछ सक्सेस देखा? बोला सर रस देखिए वहां लाइन लगा के लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं. मैं बोला चलो ये भी मान लेते हैं, बट टेल मी नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़ गए या कम हो गए? बोलते नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है. मैं बोला नंबर पेशेंट्स के बढ़ने मेडिकल साइंस के लिए सक्सेस की बात नहीं है, इट इज मैटर ऑफ फेलियर. स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, ये सक्सेस था. हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, ये कोई सक्सेस की बात नहीं है. इट इज अ मैटर ऑफ फेलियर. और फेलियर इसलिए कि मेडिकल साइंस अपने बॉडी को यूज करना नहीं चाहती, अपनी हीलिंग पावर को यूज नहीं करना चाहते, अपने खाने पीने को यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है. दे आर कीन ऑन डूइंग बाईपास सर्जरीज, एंजियोप्लास्टी, और इसी को लेके हमारे संग उनका झगड़ा चलता रहता है. मैं बोलता आप अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, और असली ट्रीटमेंट करोगे तो हार्ट के ऑपरेशंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है. एंड दिस वर्कड. एनीवे, मेडिकल साइंस अगर सही होता तो नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स बढ़ते नहीं, नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स कम होने चाहिए थे, पर उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, यह सक्सेस की बात नहीं है. और मेरी एक और थियरी है, बहुत सिंपल सी थियरी है, वो है कि बॉडी को डिस्टर्ब मत करो. सी रिमेंबर वी हैव सो मेनी मशीन्स. बॉडी इज अ मशीन, पर ये मशीन स्पेशल मशीन है बिकॉज ये नेचर की बनी हुई है. याद रखिए, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप्स है, ये फ्रिज, एसी, जितने सारे इक्विपमेंट्स है, कार, प्लेन, दे आर ऑल मेड बाय अस. We can dismantle them, we can put them back again and it starts working. But nature we cannot dismantle and put it back. एक फूल को तोड़ देता हूं, वापस जोड़ सकते हैं आप? क्यों नहीं जोड़ सकते?
इट्स नेचर, नेचर के आगे हम है नहीं, मेडिकल साइंस नेचर से बहुत पीछे है अभी। आप सोच के देखिए, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, हैव यू सीन अ पोमोग्रेनेट? आपके उसके दाने की पैकिंग देखिए आपने, कितने साइज शेप के दाने सबको एक साथ डाला हुआ है। अब वो सारे दाने खोल के आपको पकड़ा देता हूं, आप कैन यू पैक इट बैक अगेन लाइक द सेम वे? क्यों नहीं? क्योंकि नेचर हमसे बहुत आगे है, और इस नेचर की ये बॉडी है, इसको काटना नहीं चाहिए। और इसलिए मैं ऑपरेशंस के खिलाफ चलता हूं। मैं बोलता हूं नो बाईपास सर्जरी, नो एंजियोप्लास्टी एंड नो एंजियोग्राफी। इस बॉडी के पास हीलिंग पावर है, इट हैज अ हीलिंग पावर। मेरे हाथ में एक स्क्रैच कर दीजिए, मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, मर्सिडीज गाड़ी का स्क्रैच जिंदगी भर वही रहेगा और ये 10 दिन में हील कर जाएगा। सो बॉडी कैन हील इटसेल्फ, व्हाई नॉट हील इट अप? हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर्स बोलते प्लास्टर करके छोड़ दो। बोला आप ठीक कौन करेगा? बोला नहीं, अंदर अपने आप ही बंदोबस्त है। Now if you have all the bandobast, then why do you want to operate? Now this is on that plank I started working, and I tried to explain people. Today we have all across the world about 2 lakh patients, and very recently we opened our center in Los Angeles in USA. In between I started writing books, and one of my very famous books is called Reversal of Heart Disease in 5 Easy Steps. It was published initially in English, and then Hindi, Gujarati, Punjabi, Bengali, Kannada, Telugu, Tamil, Marathi, and Malayalam. 10 languages it has been published. 400 pages book. I got a new medical device to treat heart patients, and this is called natural bypass. Let me explain very simple things about natural bypass. You know, God has given us 2 kidneys. 1 kidney we can donate. You know about that. That means एक kidney हमारे पास, buy 1 get 1 free, सुना आपने कभी? So 1 kidney is free with us, extra. Similarly, heart also has an extra set of tube which we can utilize. Extra set of tube हमारे heart में एक तो यही है, वो block हो जाए तो एक और extra दिया हुआ है. And these are called capillaries and collaterals. And these capillaries and collaterals are extensively present in the heart. वो बंद पड़ी होती है क्योंकि हम उसको use नहीं करते हैं. ये use कौन करता है? Sportsmen. You know the sportsmen when they run, their capacity increases. क्यों increase हो जाती है उनकी capacity? क्योंकि वो second set को चालू करता है. कैसे चालू हो जाती है? उस पे pressure पड़ता जाए, वो अपने आप चालू होता जाएगा. God ने बोला रखा हुआ है, जरूरत पड़े हर दिन दौड़ोगे तो वो चालू होते रहेगा और तुम्हारी speed बढ़ती जाएगी. तो एक स्पोर्ट्समैन 1 घंटा भाग सकता है, आप नहीं भाग सकते. क्यों? बिकॉज योर कोलैटरल्स आर क्लोज, हिज कोलैटरल्स आर. तो हार्ट का पेशेंट का ओरिजिनल ट्यूब ब्लॉक्ड है, व्हाई नॉट ओपन द सेकंड वन? सो द मेडिकल साइंस डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड केम आउट विद अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट. एक मशीन है, इस पे आप लेटा दो पेशेंट को, और जैकेट्स आपको दिख रहा है, 6 जैकेट है, वो हमारे मसल्स में लग जाते हैं, और सारे मसल्स को एक साथ स्क्वीज कर दिया तो ब्लड कहां जाएगी? हार्ट की तरफ जाएगी, और एक प्रेशर देगी हार्ट के ट्यूब्स को, और उससे वो सारे ट्यूब्स खुलता रहेगा. और ये प्रेशर बहुत सिंक्रोनाइज्ड होगा. देखिए हार्ट पंप कर रहा है, उस वक्त अगर पैर भी पंप कर दे तो दोनों में ढुशुम ढुशुम हो जाएगी. सो द प्रोसेस इज मॉनिटर्ड विद ईसीजी. एक ईसीजी लग जाती है कंप्यूटर में. कंप्यूटर नाउ नोज व्हेन देयर इज अ सिस्टोल, व्हेन देयर इज अ डायस्टोल. ड्यूरिंग सिस्टोल जैकेट विल नॉट पंप, दे विल ओपन, द ब्लड विल फिल अप द लेग्स. एंड ड्यूरिंग डायस्टोल जब ब्लड वापस आ रही है तो जैकेट स्क्वीज करेगी और सारे ब्लड को डबल भेज देगा. तो जो एक्सरसाइज में हम लोग दौड़ के करते हैं वो मशीन कर देगा, और बॉडी को काटने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास. मेडिकल साइंस इसको बोलते हैं काउंटर पल्सेशन. पल्स हो गया, हार्ट इज पंपिंग, काउंटर पल्स इज लेग इज पंपिंग, एंड द लेग्स कीप ऑन पंपिंग द ब्लड टू द हार्ट. For about 35 to 40 hours का treatment होता है, and we open thousands of tubes inside the heart, and this treatment has become very popular now, and we have this treatment along with the medical therapy plus the naturopathy and yoga. Nevertheless, this is a book which I authored some time back on yoga for reversal of heart disease. We treat all our patients where the important component is also yoga, plus the diet, plus the stress management. We also use medical management and ECP. So we have combined everything that is possible without cutting the body, and that's the beauty of Saul. I wrote a lot of books on 200, called 200 tips books, 200 tips on diet and diabetes and losing weight and blood pressure, and all these books are also published in different languages. I authored a huge number of recipe books called Zero Oil Cooking. ये what is zero oil? Oil, I must tell you, आप छोटी सी realize करेंगे, oil को 1 बूंद मुंह में डालिए, टेस्ट है या नहीं है?
सोच के देखिए टेस्ट है या नहीं है, एकदम टेस्ट नहीं है। तो ऑयल को डाल क्यों रहे हम लोग खाने में? अगर कोई लेडी को पूछा जाए जो खाना बनाने जाता है, उसको पूछते किसने बताया आपको ये ऑयल डालना है सब्जी में, ऑयल का टेस्ट ही नहीं है। बोला नहीं ऑयल का टेस्ट होता है। मैं बोला नहीं होता, आपको एक ऑयल देता हूं, सब्जी देता हूं, बना के दिखाओ टेस्ट, नो टेस्ट। तो फिर टेस्ट किस चीज का? मसालों का है, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, दे आर ऑल टेस्टी, बट यू हैव टू फ्राई देम, और उसके लिए ऑयल की यूज होती है। मेरे घर में एक लेडी को मैंने पूछा आपको किसने बताया तेल से यूज होता है, तेल से फ्राई करना होता है मसाले को? मेरी मदर ने बताया। तो मदर को किसने बताया? उसकी मदर ने, उसकी मदर ने, उसकी कोई 20 जनरेशन पहले एक मदर ने फाइनलाइज किया कि तेल से फ्राई होता है, और सारे लोग वो सीख गए। हमारे घर पे एक मेड सर्वेंट, एक नौकरानी है, वो बोलती है मेरे मदर ने बोला था सब्जी दाल बनाते वक्त कभी तेल यूज नहीं करना। मैं बोला क्यों? बोला पैसे कहां से लाएंगे। बोला हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी में सारे लोग पानी से ही मसाला को भून लेते हैं, और वही तो आपके यहाँ हम देख रहे हैं। वो बोलते मैं पैसे वालों के घर गई, जब पता चला पानी से नहीं, वो लोग तेल से भून लेते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लोगों को बोलते हैं गरीब वाला खाना चालू करो, पानी से मसाले को भून देते हैं। एंड दिस वीडियो ऑफ माइन हैज अबाउट 2 मिलियन व्यूज इन द यूट्यूब। जीरो ऑयल कुकिंग, ये बिना ऑयल का खाना, उसमें सारे मसाले होंगे, टेस्ट वही का वही होगा, खाली भूनने का तरीका बदल जाएगा। एंड आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट टुडे लंच में आपको जीरो ऑयल का खाना खिलाया जाएगा। इनकी टीम गई थी वहां, सब्जियां, दाल, इसमें तेल डालते हैं हम लोग सोच के कि मसाले को भूनना है, बट विदाउट मसाला, विदाउट पानी, विदाउट ऑयल, अगर पानी से ही सेम भून लें तो कभी कभी लोग बोलते हैं सर कोई ना कोई यूज करेंगे ऑयल। मैं बोलता हूं पानी का नाम सावल ऑयल रख दो, और आज के जमाने में सबके लिए फ्री है। सो जीरो ऑयल कुकिंग, हैव यू अंडरस्टूड? लोगों ने बोला सर क्या क्या बन जाएगा, तो हमने 150 तरह की सब्जियां और दालें बनाई। लोगों ने बोला सर चलो सब्जी दाल हो गई, रोटी में तेल लगाएंगे, घी लगाएंगे नहीं, और चावल प्लेन ले लेंगे। फिर थोड़े दिन बाद आए सर कचौड़ी पकोड़े समोसा का क्या होगा? तो हमने कचौड़ी पकोड़े समोसा भी बिना तेल के बनवाए, और 150 तरह के नाश्ता बनवाया, 150 तरह की मिठाइयां बनाई, 150 तरह के साउथ इंडियन डिशेस बनाए, एंड ऑल विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। लोगों की एक गलत धारणा है कि ऑयल बिना, मैं देखता हूं कोई को बोलता हूं बिना ऑयल, घर जाके वाइफ को बोलते बिना ऑयल, वाइफ बोलती है थोड़ा सा डालूंगी, बोलता है नहीं चाहिए, बोलता है इतना सा डालूंगी, बोलता है नहीं चाहिए, बोलता है बस टच कर दूंगी। फिर वो वाइफ को डांटता है कि तुम मेरे को बचाना चाहते हो, मारना चाहते हो, तो घबरा जाती है, बोलती है आपके लिए जान दे दूंगी। बोला जान देने की जरूरत नहीं, तेल मत देना। तो वाइफ मान जाती है, पर क्या बोलती है ठीक है बॉयल खाना खाओगे अब। तो वो क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं सब्जी को, और ऊपर से नमक डाल के बोलते खा लो। नो दैट्स नॉट करेक्ट। सारे मसाले कहां चलेंगे? बोले मसाले कैसे डालेंगे, मसाले तो बिना तेल के भून ही नहीं सकता। आपको समझ आ रहा है गलती कहां पे है? दिमाग में बैठ चुका है एक ही तरीका है, तेल से ही मसाले को भूनना है, बट अगर पानी से ही भून जाए तो आपको असुविधा क्या है? नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कुकिंग। एनीवे, दिस कुकिंग मेथड हैज चेंज थिंग्स। हमारी जितने वर्कशॉप्स होते हैं, कैंप होते हैं, उसमें हम लोगों को सिखा के देते, पहले खाना खिलाते हैं, फिर बना के दिखा के देते, ऐसे बनेगा। लोग बोलते हैं सर अगर ऐसा बन सकता है तो तेल के पैसे भी बचे और हार्ट भी बच गया। These books are all published in Hindi, and I once tried, मैंने एक बार मन में बनाया था हर महीने की किताब लिखूंगा, हर टॉपिक को सिंपल बनाऊंगा, and I wrote about 5 years about 60 books on these topics like anger, allergy, diabetes, constipation, obesity, stroke, paralysis, और ये सारे books हिंदी में भी publish हो चुके हैं। These are my Bengali books, these are Gujarati books, these are Punjabi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, और मैंने बहुत सारे वीडियोस YouTube में डाल के रखे, करीब 400 वीडियोस YouTube में होंगे आपके, और वो आप सारे देख सकते हैं। These are few or more books that I wrote, and we also bring out a magazine for all my patients. About more than 1 lakh of my patients get this magazine every month, and you can download them from my website. चलिए अब असली टॉपिक पे आते हैं, हार्ट की बीमारी को समझते हैं 2 मिनट में। You can see this is a heart. हार्ट आपको दिख रहा है वहां पे? You can see the heart over there. हार्ट पंप करती है तो पूरे बॉडी को रेड वाली ट्यूब से ब्लड मिलती है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये हार्ट जब पूरे बॉडी को ब्लड भेजा तो अपने लिए 3 ट्यूब लिया, एंड दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। 2 लेफ्ट में, 1 राइट में है। इनके अंदर ब्लॉकेज होती है। अब ये ब्लॉकेज को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए ब्लॉकेज कितने दिनों में बनती है। एक ट्यूब के अंदर की ब्लॉकेज दिखा रहा हूं। दिस इज 10 years of age, देयर इज नो ब्लॉकेज। दिस ट्यूब इज अ क्रॉस सेक्शन।
ये 10% ब्लॉकेज है, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80% ब्लॉकेज कौन से साल में है? ब्लॉकेज कब डेवलप होती है हमारे हार्ट में? जब तक बच्चा जन्म के बड़ा होता रहता है तो फैट वेट खाया तो ग्रोथ में लग लेती है। द डे इट स्टॉप्स, द डे हाइट बढ़ना बंद हो जाए, कौन से साल में? 18-20 साल में, when the height cannot grow. Now you can grow where? You can grow this side or inside. कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। तो ये समझ लीजिए 20 साल में ब्लॉकेज बनना लगा और 60 साल में पता चला 80% ब्लॉकेज है। अब ये हार्ट का पेशेंट बन गया। अच्छा, 40 साल लगी है ब्लॉकेज को बनने। अच्छा, एक बार बताइए कितना परसेंटेज हुआ? 2% पर ईयर। कोई आदमी बोलता है सर 2% इज टू स्लो, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं, तो ज्यादा फैट खाओ, एक्सरसाइज बंद कर दो, जल्दी हो जाएगी। और उसके संग स्मोकिंग वोकिंग बढ़ा दोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, 30 साल में हार्ट के मरीज बन सकता है आदमी। तो ये ब्लॉकेज जो प्रोसेस है, आपको क्या लगता है हम फाइनल करेंगे या गॉड? हम और यही गलत हो रहा है कि हम गलत खाना खा रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं और ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते, अच्छा 80 ब्लॉकेज तक क्यों नहीं पता चलता मरीज को? क्योंकि हमारी हार्ट की जरूरत 20 से पूरा हो जाता है। हार्ट की सप्लाई है 100 और जरूरत है 10, 20, 30। 3 जरूरत क्यों है हार्ट की? थिंक ऑफ इट, यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर रनिंग, जरूरत अलग अलग होगी कि नहीं हार्ट की? व्हेन यू रन यू नीड 30%, व्हेन यू वॉक यू नीड 20%, और बैठे हैं तो 10%। तो जब तक, अच्छा आजकल दौड़ने का काम है ही नहीं, तो जब तक आदमी को चलने में दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 20 खुला है, तब तक मरीज बोलता है मुझे हार्ट का बीमारी है ही नहीं। तो 80% ब्लॉकेज है। मरीज बोलता है सर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं, नो प्रॉब्लम, 2-4 सीढ़ियां चढ़ जाता हूं, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ हार्ट पेशेंट। आपको समझ आ रहा है? और जिस दिन मरीज आके बोलता है सर मैं चलता हूं, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूलने लग गया, तो व्हाट इज द मीनिंग? ब्लॉकेज हैज क्रॉस्ड 80%। तो हमारे पास मरीज आएगा कब? 80 के पहले, 80 के बाद? 80 के पहले क्या बोलेगा? आई एम अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, आपको क्या लगता है आप में से कोई का भी कोई ब्लॉकेज तो होगा नहीं ना? क्या लग रहा है आपको? 80 तो नहीं है तो मान लेते हैं, बट होगा ना कुछ ब्लॉकेज तो सबके पास। पता चल सकता है क्या अभी? यस, पता चल सकता है। चलिए, हार्ट की बीमारी क्या समझ आ गई? अगर एक सेंटेंस में कोई को बोला जाए तो क्या बोलना है? हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है, अपने लिए 3 ट्यूब लेती है, और तीनों के अंदर में से कोई भी ट्यूब में 70-80% चर्बी जम के ब्लॉक हो जाए तो वो हार्ट के पेशेंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं क्या हम लोग? हमारे कार्डियोलॉजिस्ट का काम कॉम्प्लिकेशन करने वाला काम भी है। मरीज पहुंच गया सर मैं चलता हूं, मेरे को छाती में दर्द होता है, रुकते ही ठीक हो जाता हूं, उनको भी समझ आ जाता है 80 ब्लॉकेज। तो पेशेंट पूछता है सर मुझे हुआ क्या है, तो बोलते हैं यू हैव गॉट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाउ द पेशेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो सोचता है सर, उसके पास 2 चॉइस रहता है, एक तो पूछे सर व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा चॉइस क्या है? सर आपको जैसा लगे वैसा ट्रीटमेंट करो। तो ज्यादातर मरीज बोलता है सर जो करना है वो। अगर थोड़ा इंटेलिजेंट मरीज होता बोलता है सर व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो डॉक्टर उसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, बोलते हैं इट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा एंड स्क्लेरोसिस बोथ हैज हैपेंड साइमल्टेनियसली इनसाइड द लुमेन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, अब तो क्लियर हो गया ना? मरीज कुछ ऐसे यहीं पे रुक जाते हैं, वो बोलते हैं सर आपने पूरा समझा दिया, स्माइल करके झूठ मूठ बोलता है मुझे समझ आ गई। अच्छा, मरीज अगर तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहे तो डॉक्टर गुस्सा भी हो सकता है, डोंट आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस, आर यू अ डॉक्टर? आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, मरीज थोड़ा इंटेलिजेंट होता है तो डॉक्टर को फिर भी पूछ सकता है, कैसे? सर कम से कम 10 लोगों ने आपके बारे में बताया और ये भी बताया इस फील्ड में आपसे बड़ा डॉक्टर इस शहर में कोई नहीं है। नाउ द डॉक्टर इज वेरी हैप्पी। बाहर से बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, अंदर बड़ा हैप्पी होता है। अब मरीज बोलता है सर अगर आप बुरा ना माने एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए ना। सर व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? अब डॉक्टर उसको और कॉम्प्लिकेट करता है, बोलता है इट इज द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्ब्ड बाय द फैगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अब तो क्लियर हो गई ना आपके पास? नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? मेडिकल साइंस बोलता है आम आदमी को असली बात बताना ही नहीं है कि तुम्हारे हार्ट के अंदर चर्बी जम के ब्लॉक हो गया है, इतनी सी बात है, उसको कितनी घुमा दी, आपको समझ आ रहा है? एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा हार्ट की बीमारी होती क्या है। चलिए, हार्ट की बीमारी समझ आ गई, इसको पता कैसे कर सकते? देखिए, आगे के जमाने में एक टेस्ट होता था ईसीजी, सुना आपने? पेशेंट को लिटा दिया, ईसीजी ले लिया और ईसीजी नॉर्मल आती है। मरीज बोलता मेरा ईसीजी नॉर्मल है सर, ये क्या है?
मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ। बोला यार करते वक्त आप क्या कर रहे थे? बोला मैं तो लेटा हूं। मैं बोला लेटे लेटे आपकी हार्ट की जरूरत सिर्फ 10% है, तो 90 ब्लॉकेज होना तब भी ईसीजी में कुछ नहीं आएगा। तो मरीज दिमाग लगा के बोलता है सर चल के ईसीजी कराइए, मुझे चलते वक्त दर्द होती है। इसको बोलते हैं टीएमटी। आगे के जमाने में लोग ये करते थे, ईसीजी लगाते थे, मरीज को बोलता था पहले धीरे चलो, स्पीड से चलो, दौड़ो। अगर तीनों में गड़बड़ नहीं है तो आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो। इसका मतलब 30 खुला हो, यू आर नॉट अ हार्ट पेशेंट। पर 70 ब्लॉकेज तक टीएमटी भी डायग्नोस, 70 तक सबको वेट करना चाहिए ना। ओके लेट्स ब्लॉक 70 एंड देन विल डिसाइड अबाउट द टीएमटी पॉजिटिव आए तभी। तो इसके लिए और टेस्ट चाहिए। और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट लोग एक टेस्ट रन करते थे, इसका नाम है एंजियोग्राफी। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप बोलिए सर मैं हार्ट का पेशेंट नहीं हूं बट आई वांट टू नो द ब्लॉकेज, डू यू हैव एनी टेस्ट? दे से यस वी हैव एंजियोग्राफी। आप बोलते हैं सर क्या करना पड़ेगा? बोला आपको एडमिट करना पड़ेगा, एक तार घुसाएंगे आपके अंदर। अच्छा आम आदमी मान जाएगा? नॉर्मल आदमी बोलेगा सर कुछ हो जाए? बोला नहीं, उसमें आपको लिखित में लेंगे, आप मर भी सकते हो। अच्छा नॉर्मल आदमी कराएगा कभी ये टेस्ट? कोई नहीं कराएगा। मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है काट के चेक करूंगा अंदर क्या है। मैं बोलूंगा सर ठीक है कम हो गया है। So nobody would go for a wire angiography if they don't have heart problem. हार्ट का पेशेंट फंस जाता है, बोलता है यार इधर भी मरूंगा, चलो तार घुसवा ही लेते हैं एक बार। बट आई वॉज थिंकिंग गॉड कोई ऐसी टेस्ट हो बिना तार के पता चल जाए, एंड लकीली फॉर यू दिस टेस्ट इज अवेलेबल कॉल्ड सीटी एंजियोग्राफी। आजकल नई टेस्ट आ गई है, कुछ नहीं करना है, आप इस पे लेट जाइए और ये अंदर जाएगी और एक कैमरा घूमेगा छाती के चारों तरफ एंड एक इंजेक्शन देंगे, विद इन 1 मिनट दे विल टेल यू हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर। दिस इज कॉल्ड सीटी एंजियोग्राफी। पहले 64 स्लाइस आई, फिर 128 स्लाइस आई, अब 500 स्लाइस मशीन आ गई है। वंडरफुल टेस्ट, विद इन 2 मिनट्स विदाउट एडमिशन, विदाउट पंक्चरिंग योर बॉडी, दे विल टेल यू हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर। आपको लगता है पॉपुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस इंडिया में करीब 200-250 मशीनें लग गई हैं, 5-6 करोड़ की मशीन होती है और कितने ही आप करवा लो उसमें टेस्ट, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर। ये टेस्ट में एक ही प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट को पसंद नहीं आ रही है टेस्ट, क्योंकि उनको घुसाने के लिए चाहिए एडमिट करना चाहते हैं और इसमें एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है। बट इट्स अ वंडरफुल टेस्ट और ये टेस्ट का कॉस्ट करीब करीब 15,000 रुपया होता है। बट हमने इसमें जुगाड़ बैठा है। जुगाड़ समझते हैं? इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको मालूम है मैं एक पेशेंट को लिख के भेजूंगा ये टेस्ट करा के लाओ, 15,000 रुपया देगा, तो वो पूरा क्या लैब ले जाएगा, मुझे भी कुछ देगा? डॉक्टर्स को इसका कुछ मिलता भी है। जब वो मेरे पास 5,000 लेके आए, मैं बोला 5,000 बहुत कम है यार। तो बोला सर अगर आप 10 केस भेज सकते हो पर मंथ तो हम आपको 6,000 दे देंगे। मैं बोला 50 केस है मेरे पास हर महीने का, बोलो कितना दोगे? सर आप बताइए। आई सेड 8,000 मैं लूंगा, 7,000 आपका। बोलता ओके एग्रीड। आई सेड एक काम करो ये पैसे कब दोगे? बोला सर आप किसी को भेज देना उसी को दे दूंगा। मैं बोला एक काम करना, मेरा जितने मरीज आ जाए सबको 8,000 वापस करना, 7,000 में टेस्ट करवा देना आपसे। सो ऑल अक्रॉस द कंट्री सावल के कोई भी क्लिनिक में जाके टेस्ट लिखाएंगे तो यू गेट अ हेफ्टी डिस्काउंट बिकॉज द लैब्स हैव टू ओबे विद अस। सो एनीवे ये हार्ट की बीमारी क्या है समझ आ गई और टेस्ट पता चल गया। अब आगे देखते हैं इस बीमारी का एक ही मेजर प्रॉब्लम है, वो है हार्ट अटैक। ना व्हाट इज हार्ट अटैक? इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए 1 मिनट और चाहिए। व्हाट इज हार्ट अटैक? आई डोंट नो वेदर आई एम कवरिंग द टाइम, मैं और 10 मिनट लूंगा। हार्ट अटैक को समझते हैं। व्हाट इज हार्ट अटैक? आपको समझ आ रहा है? ये ब्लॉकेज है 20%, 40%, 80% और एक दिन इसके ऊपर का पर्दा फट सकता है, हाँ या ना? देयर इज अ ब्लू मेम्ब्रेन, आपको दिख रहा है ब्लॉकेज के ऊपर। अगर ब्लॉकेज बढ़ता जाए तो मेम्ब्रेन का क्या होगा? मेम्ब्रेन फट जाएगी और मेम्ब्रेन फटेगी तो क्या होगा? यहां से केमिकल्स निकल के यहां पे ब्लड है और ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। कितनी ब्लॉकेज हो गई? 100। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। 100 ब्लॉकेज होगा तो पेशेंट को क्या तकलीफ होगा? बैठे बैठे दर्द हो रहा है। पहले था चलने में होता था, रुक जाता था, तब ठीक होता था। बैठे बैठे दर्द है, इसका मतलब कितनी ब्लॉकेज है? 100% ब्लॉकेज। पसीना पसीना हो रहा है पेशेंट को, दिस इज हार्ट अटैक। क्यों हुआ? क्लॉट आ गई। क्लॉट क्यों आया? सर मेम्ब्रेन बस्ट कर गया। मेम्ब्रेन क्यों बस्ट किया? अरे ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन तो हार्ट अटैक। आपको याद है एक पेशेंट को मैंने कुछ नहीं किया, उसका ब्लॉकेज बढ़ता गया, एक दिन पर्दा फटा, हार्ट अटैक हुआ, मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब बताइए कार्डियोलॉजिस्ट अगर ये जानता हुआ भी मरीज को ये ना बताए कि ब्लॉकेज बढ़ाना मत, ब्लॉकेज को रोक लो या कम कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा? दे विल नेवर गेट सॉल्व्ड। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू टेल हार्ट पेशेंट, देखो ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन तो हार्ट अटैक।
अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये कब फटेगा? देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट हार्ट अटैक, है या नहीं है? कब हो जाए मालूम ही नहीं। क्यों? बिकॉज द मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पीपल कम टू मी, सर 90 ब्लॉकेज, अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग, रेमंड्स क्वालिटी पर्दा। और कोई का लोकल क्वालिटी पर्दा हो तो 50 में भी फट सकता है। सो मेम्ब्रेन में बस्ट इवन एट 50 एंड इट मे नॉट बस्ट एट 90, so there is uncertainty। हमारे पास पेशेंट आता है 70, 80, 90, 100 ऐसे ब्लॉकेज लेके आता है। मैं बोलता देखो, अगर 90 है तो 91 में नहीं जाना, 89 में जाना है तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर 80 है, अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो 81 नहीं जाना है, 79 लेना है। सो इफ यू कैन स्टॉप द ब्लॉकेज फ्रॉम ग्रोइंग एंड इफ यू कैन रिवर्स, तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। आपको लगता नहीं है क्लियर बात हो गई? नोट की गड्डी में मैं नोट घुसाता जाऊंगा, रबर बैंड फट जाएगी, और ना घुसाए तो, और कुछ नोट निकाल लें तो। अगर मैं ऐसे जाता जाऊं गिर जाऊंगा, अगर रुक जाऊं तो, और अगर पीछे जाऊं तो सेफ हो जाऊंगा। तो हार्ट के पेशेंट को इतनी सी बात हम लोग नहीं समझा सकते क्या, कि देखो ब्लॉकेज है और बढ़ाना मत, इसको रोक देना, और कम कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। और कम करने के लिए करना क्या है? देखिएगा, दो चीज। पीपल आस्क मी, सर व्हाट इज द क्रक्स? मैं बोला बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से पूछिए, ये जमा क्या चीज है? एक आदमी को मैंने पूछा, अनपढ़ आदमी था, मेरे को बोलता है सर, मैं बोला अच्छा हार्ट अटैक को रोकना कैसे? तो मेरे को इतनी सिंपल सी बात बोला, सर ये जो काला काला आपने बनाया ना, इसका एक पीस काट लेते हैं। मैं बोला फिर इसका क्या करोगे? बोला पैथोलॉजी लैब में दे दूं तो बता देंगे इसमें क्या है। मैं बोला हाँ बता देंगे, फिर क्या करोगे? बोला उसी की सप्लाई बाहर से बंद करवाऊंगा। आपको लगता नहीं नॉर्मल सी बात हो गई? ये काला आइटम होता क्या है? ये होता है चर्बी, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये दो चीज आपको जानना होगा। ये दो आइटम की सप्लाई अगर बाहर से बंद कर देंगे तो हार्ट नहीं होगा। ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? नाम लोगों ने सुना है, नॉलेज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वर्ल्ड में एक ही खाने में होता है, वो है एनिमल फूड, जानवर से बना हुआ खाना। इसमें सारे मीट आ गए, तो हमारे पेशेंट्स को मीट खाना मना है। कोई भी तरह का मीट, मछली, अंडा मना है। और दूध भी एनिमल फूड है। दूध में एक ब्यूटी है कि इसको बॉईल करके ठंडा कर दिया, ऑल द फैट विल डिपॉजिट ऑन द टॉप। उसको हटाते रहो 2-3 बार, तो फिर दूध पीने लायक हो गया। तो हार्ट के पेशेंट का पहला रूल है, स्टॉप ऑल द एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क, एंड मिल्क का जितना फैट है उसको तो पक्का ही निकाल लेना। और ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? याद रखिएगा, कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। प्लांट फूड मतलब ये सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी तेल, ये प्लांट है एनिमल है? इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कंपनी बड़ा बड़ा करके लिखता है 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे तो लिखने की क्या जरूरत है, इसमें है ही नहीं। बोलता नहीं, फिर भी लिख देता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। तो ऑयल इज व्हाट? इट इज ट्राइग्लिसराइड। तो दो चीज की स्टॉपेज चाहिए, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज ऑयल। अब आपको समझ आ रहा है मैंने जीरो ऑयल क्यों किया? आई डोंट वॉन्ट एनी ऑयल फ्रॉम आउटसाइड। नेचर ने ऑलरेडी हर खाने में थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है, वो सारे हमारे लिए बहुत पूरा है। और लोगों की ये भी धारणा है कि फलाना ऑयल अच्छा, फलाना ऑयल खराब। ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बता दूं, ये पानी का बोतल आपने देखा, इसमें बिस्लेरी लिखा होता है, इसमें किनले लिखा होता है, इसमें एक्वाफाइना लिखा होता है, देखा आपने? अंदर आइटम सेम है, अलग अलग है। अच्छा, पी के बता सकते हैं आप? 3 ग्लास में 3 ऑयल पानी का बोतल से डाल के देता हूं, कैन यू टेल मी कौन सा बिस्लेरी है, कौन सा एक्वाफाइना, कौन सा किनले? अच्छा, 3 सब्जी बना के देता हूं, एक सफोला, एक कर्नोला, एक धारा। आप खा के बताएंगे कौन सा सफोला से बना है? इसका मतलब क्या? डिफरेंस इज वेरी मिनिमल। तो फिर कौन सा ऑयल का हार्ट अटैक ठीक रहेगा आपके लिए? ऑलिव ऑयल वाला हार्ट अटैक? नहीं, फिर फाइनल हो जाए ना कौन सा ऑयल हार्ट अटैक करने से ठीक रहेगा आपको। महंगा वाला ऑयल ऑलिव ऑयल का है। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग नाउ? सो जीरो ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों हमारे बॉडी में भी बनता है जेनेटिक केसेस में। तो जेनेटिक केसेस में मैं दवाई देके भी कोलेस्ट्रॉल को कम करके रखता हूं। रूल इज कोलेस्ट्रॉल 130 to 200 होना चाहिए, हमें 129 चाहिए। और उसके साथ आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के 3-4 भाई बहने हैं, उनके नाम है HDL, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, इनको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। सुना आपने कभी? पर मेन 2 क्रिमिनल है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है अच्छा ट्राइग्लिसराइड। ड्राई फ्रूट्स में भी आती है। आप सोचिए, मूंगफली से तेल बन रहा है, तो मूंगफली में तेल नहीं होगा क्या? तो इसका मतलब ड्राई फ्रूट्स भी हमें निकालना चाहिए। तो हार्ट के लिए 4 चीज हो गया, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, और तेल नहीं लेना है कोई तरह का भी, और एनिमल फूड नहीं लेना है, और दूध में से मलाई निकाल लेना है। और इसके बाद इनको, ये अपने आप इनको कंट्रोल करता है। इसमें एक HDL, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है। इफ यू वॉक एवरी डे, इफ यू डू योगा, HDL
बढ़ जाती है। और इसके साथ 6 और गुंडे हैं जो बोलते हैं ब्लॉकेज मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं आई कैन स्पीड अप द ब्लॉकेज। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड गुंडे बड़े वाले, छोटे गुंडे 6 हैं। और ये 6 का नाम देख लें, एक है हाई ब्लड प्रेशर, एक है हाई ब्लड शुगर, एक है स्मोकिंग, एक है अल्कोहल, एक है ओवरवेट, एक है स्ट्रेस। ये 6 लोग बोलते हैं हम ब्लॉकेज नहीं बनाएंगे, हमें साथ रखोगे तो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़वा देंगे। 50 साल में हार्ट अटैक होना था, हम लोग को साथ रख लो, 45 में करवा दूंगा काम। तो वी हैव टू ऑल्सो कंट्रोल। हार्ट की बीमारी में वी हैव टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल भी एकदम कम होना चाहिए, और ओवरवेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस, अच्छा इनमें से 6 में से सबसे बड़ा गुंडा है स्ट्रेस। स्ट्रेस बोलता है मैं स्मोकिंग कराऊंगा, मैं अल्कोहल कराऊंगा, मैं बीपी बढ़ाऊंगा, मैं शुगर बढ़ाऊंगा। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए योग और मेडिटेशन बहुत जबरदस्त काम। 4 लोग ऐसे हैं जो ब्लॉकेज को रोक सकते हैं। वो 4 कौन है? उसमें से सबसे बड़ा है फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कहां मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये दोनों ब्लॉकेज को रोकने में मदद करते हैं। एंड देयर 2 मोर, एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योगा। योगा और मेडिटेशन स्ट्रेस भी कम करेगा और हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल में लाओगे तब बनेगा। और इसके लिए हमने एक बहुत सिंपल चीज बनाई है। हम लोग योगा की पूरी थियरी हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं, उनके फायदे समझाते हैं, उनको क्या क्या करना, कैसे करना। हम लोग की 10 मिनट की एक हार्ट एक्सरसाइजेस है, कुछ आसन है, प्राणायाम है, और प्रेक्षा मेडिटेशन हम यूज करते हैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए। और उनको मेडिटेशन कैसे करना वो सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, स्ट्रेस को कैसे कम करना वो सिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात हमने एक काम किया है, दिस इज माय लास्ट स्लाइड टू टेल यू, कि ये एक सर्कल बनाया हमने। कैन यू सी, कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी, एचडीएल भी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सारे रीजंस ऑफ द ब्लॉकेज मैंने लिखा है और इनके 3 कलर बना दिए। रेड मीन्स डेंजर, इफ यू आर इन द रेड जोन यू आर ग्रोइंग द ग्रो द ब्लॉकेज, इफ यू आर इन द येलो जोन जेन ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, और अगर ग्रीन में ले आए तो आप ब्लॉकेज कम करने लगेंगे। डॉक्टर डीन ऑर्निस इज द फर्स्ट डॉक्टर हु शोड टू द वर्ल्ड कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है विद लाइफस्टाइल एंड योगा मेडिटेशन कंबाइंड। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को 130 ला दें, ट्राइग्लिसराइड को 100 ला दें, एचडीएल को 4 से कम ला दें, ब्लड प्रेशर 120/80, शुगर 100/140, और स्मोकिंग को नील कर दें, बीएमआई वजन को कम कर दें, वॉक एवरीडे करें, 0 ऑयल खाना खाएं, मिल्क प्रोडक्ट कट कर दें, फ्रूट्स फाइबर और हर दिन खाएं, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन बन जाए, योग करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस कम कर दें, तो हमारा काम क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है? यू विल स्टार्ट रिवर्सिंग द ब्लॉकेज। और अगर ब्लॉकेज रिवर्स होने लगी तो हार्ट अटैक का भी कोई चांस नहीं है, और हार्ट का पेशेंट क्योर हो जाए तो आपको लगता नहीं है सस्ता सुंदर टिकाऊ ट्रीटमेंट हो गई। हार्ट के हॉस्पिटल के पास एक प्रॉब्लम है, वो बोलते इतना सब बता दिया तो एक भी मरीज हमारे ऑपरेशन के लिए नहीं बचेगा। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग एक थोड़ा सा एक उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं आप आओ, और वो पेशेंट बोलता है मुझे चलने में छाती में दर्द होता है, रुकने से ठीक हो जाता है। उनको भी मालूम है 80 ब्लॉकेज होगा। उनको बोलते हैं आओ एक बार एंजियोग्राफी करके देखेंगे ब्लॉकेज है या। अच्छा, पेशेंट एडमिट हो जाता है, वो तार घुसा के एंजियोग्राफी करके बोलते हैं 80 ब्लॉकेज है और 1-2 मिनट में आप मरने वाले हो। अच्छा, पर्दा कब फटेगा ना उनको मालूम है ना पेशेंट को मालूम है, पर वो बोलते हैं देखो यू आर लकी, यू हैव कम इन टाइम, इफ यू आर लेट बाय 2 मिनट्स यू मे डाई। अच्छा, पेशेंट घबराएगा कि नहीं? और वहीं पे ऑपरेशन के लिए जबरदस्ती करके करवा लेते हैं। एक मेरा पेशेंट बोला सर मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मैं बोला फिर? बोला मैं नहीं कराऊंगा। मैंने बोला देखो कल जो ब्लॉकेज था आज भी वही ब्लॉकेज है, मुझे रिपोर्ट दो, मैं घर जाऊंगा। बोला यू आर कैरिंग एन एटम बॉम्ब विथ यू। मैंने बोला कुछ भी हो, मैं कल पैदल चल के आया हूं तो क्यों नहीं चल सकता हूं अभी वापस जाने के लिए। बोला आप चल कैसे रहे वही समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, जो भी ब्लॉकेज है मुझे लिख के दे दो, मैं घर जाऊंगा। बोला घर पहुंचेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं बोला मैं आया हूं, पहुंच जाऊंगा। बोला आपकी वाइफ ने परमिशन दे दिया। उनसे बात नहीं किया, वाइफ को डराया। वाइफ मान गई तो वाइफ को उसने बोला बुलाओ मेरे को, मैं मिलूंगा। वाइफ को बोलता देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ है। बोलता कोई दर्द हो रहा है? बोलता कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर डरा रहे हैं, खाली वो जहां तार घुसा था वहीं पे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तो वाइफ को समझ आया, बोला चलो फिर घर चल के सोचेंगे। तो हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहा, बोलता आप बॉन्ड लिख के दो, कभी भी रास्ते में मर जाए तो हमारी जिम्मेवारी। आपको समझ रहे कितने तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए। पेशेंट बोलता है चलो फिर भी मैं जाऊंगा। बोला देख लो आप। फिर उसने बोला एक काम करो,
मैं असली बात बोल दूं, सर मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं करा रहा हूं, बोला फिर कोई बात नहीं, चले जाओ। फिर ये बोले कब तक पैसा इकट्ठा कर लोगे? तो उसने बोला मैं अगर आज बोलूंगा तो अभी का भी कर देंगे। तो मैं बोला नहीं, मुझे प्रोविडेंट फंड से लोन लेना है, 2 महीना लगेगा। बोले फिर 2 महीने बाद हार्ट अटैक होगा, कोई बात नहीं है। नाउ आई नो थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमारी मेडिकल साइंस जानबूझ के इस सिस्टम को प्रमोट कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मनी। बट मेरे को लगता है आम आदमी तक हम ये बहुत है। पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मिला, मैंने बहुत को समझाया, बोलता देखो हमारे ऊपर भी प्रेशर है हॉस्पिटल का, दे हैव गिवन अस टारगेट्स, कितने बाईपास करना, इतना एंजियोप्लास्टी करना बहुत जरूरी है। सो आई कांट डू एनीथिंग, मेरे को तो अपना जॉब को रखना। सो द सिस्टम इज सो कि वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं गुड सेंस विल प्रिवेल।